Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 6th video of revisional series of video lecture, and the paper you have seen since long time is actually the first sample paper revision, and after that the second sample paper will be revised. In different kinds of video lecture I have introduced about the question paper, so there is no need to introduce what about the instruction, how many questions are there, and what are the timing and mark duration for the question paper. So only uh, directly here I am going to explain regarding the question paper and their expectable solution. So be with the video lecture till ends in order to make the perfect note regarding the sample paper. Without delay timing, let back over the question paper. In past video lecture, that is in part 5 video lecture, you have seen the revision of question paper up to question number 18. The question number 18 of last video lecture was define osmosis and diffusion. Here that is the question number 18, define osmosis and diffusion. All about matter of osmosis and diffusion was over in previous video lecture. If you are having in problems regarding the osmosis and diffusion, then you can frequently ask me in the comment box. I will introduce further regarding the osmosis and diffusion. This is the plasmolysis. Actually the matter of osmosis and diffusion are there, but in the terms only. This is the matter of chapter 11, that is not in your syllabus, so there is no need to focus on the question number 18. Now back to question number 19. Here you have a diagram and having sub labeling, the labeling regarding A, B, C and D. That is very important question, and that is the diagram of neuron. This is a related question, and it may ask in the examination because this is in your syllabus. That is the matter of chapter 21, the control and coordination, neural control and coordination. This is the portion of neuron. So you need to label A, B and C. According to that there is a need of question. अब क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन में क्या पूछा है. ठीक है, क्वेश्चन में भी वही पूछा है, मेंशन द ए बी सी एंड डी इन द अबव डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. तो ए के बारे में बताना है, बी के बारे में बताना है, सी के बारे में बताना है और डी के बारे में बताना है. ठीक है, आई होप आप सबको पता होगा ए क्या है. ए जो दिख रहा है वो क्या है, डेंड्राइट्स है. एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए. दीज आर डेंड्राइट्स. ठीक है, और ये जो आ रहा है पॉइंट, ये बी है. बी के लिए तो बी क्या हो जाएगा, ये पार्ट है आपका साइटोन का. ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, साइटोन. ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन है आपका एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ लगा हुआ है. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ ऑफ, माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन. ठीक है, एक्सॉन का ये है माइलिन शीथ. और यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है ये डी के लिए गया हुआ है, हालांकि इधर भी हम लेबल कर सकते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्राइट्स. क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्राइट्स. ठीक है, इसके बाद से ही यहाँ से अगला न्यूरॉन, तो ये तमाम एक न्यूरॉन. ठीक है, ऐसे दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ये सब जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं नर्व फाइबर्स. सो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली न्यूरॉन के 3 ही पार्ट होते हैं, एग्जाम में आप भूलना ही मत. ठीक है, पहला पार्ट ये जो दिख रहा है ये साइटोन है, ये क्या है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है. ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, तो ये हमारा न्यूरॉन का पार्ट हो गया. तो आई होप ABCD हमारा क्लियर है. अगर डायग्राम से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हैं, हालांकि ये डायग्राम हैंडमेड डायग्राम है. ठीक है, तो ये ABCD हो गया. ठीक है, अब आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट फाइबर्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एफरेंट और इफरेंट फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या होता है, देख ले ध्यान से. देखो ये हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से तमाम नर्व फाइबर्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं. तमाम नर्व फाइबर्स निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं. ब्रेन से भी निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं. ठीक है, जो ब्रेन से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स. तो ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व 2 पार्ट है. ठीक है, अभी आपसे पूछा एफरेंट और इफरेंट के बारे में, तो अभी फ़िलहाल ये देखिए कि ऐसे नर्व्स, ठीक है,
जो बॉडी का इन्फॉर्मेशन, यानी बॉडी के जो पार्ट्स जैसे हैंड हुआ, ठीक है, लेग हुआ, नोज़ हुआ, आई हुआ, तो ये सब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन पहले ब्रेन को भेजे जाते हैं, ठीक है, फिर ब्रेन एनालाइज करके वो इन्फॉर्मेशन बॉडी के पार्ट्स तक लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो तरह के न्यूरॉन्स मिल गए, पहला न्यूरॉन्स ये है और दूसरा न्यूरॉन्स ये जो नर्व फाइबर्स दिख रहे हैं ये मैसेज कैरी करते हैं बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो जो बॉडी से, ठीक, यहाँ पे देखिए, जो बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या हम लोग बोलते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स, ठीक है। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैसेज को बॉडी में लेके जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफरेंट नर्व फाइबर्स। क्या हम लोग बोलते हैं, इफरेंट नर्व फाइबर्स। दो बातें आपको याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चीज़ें एनालिसिस होकर के या तो बॉडी में जाती है तो बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाती है। तो बॉडी से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट, और अगर बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर बॉडी में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इफरेंट। एक ट्रिक दे दे रहा हूँ, ई फॉर एग्जिट। एग्जिट मीन्स क्या होता है, बाहर निकलना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जब बाहर आता है तो उसको इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। और ए से यहाँ पे एक्सेप्ट बोलिएगा, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मैसेज, जिस नर्व फाइबर से मैसेज रिसीव करता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा है उसमें यही पूछा है, एफरेंट और इफरेंट नर्व्स ऑफ सीएनएस, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। वाइल विजिटिंग द एग्रीकल्चर फॉर्म इन अ विलेज, तनु एंड मनु आर कन्फ्यूज टू सी that the eatable parts of potato are present underground and some roots are hanging from the stem of banyan tree, ठीक है। They tries to correlate their observation with the study and after returning back they ask the teachers to explain the reason। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ, ए ही दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ है। वाई अंडरग्राउंड swollen part of potato is a stem hanging brown fibers of parts of banyan tree are the roots, justify your answer, give some example of underground and aerial roots। देखो बेटा, ये चैप्टर 5 का मैटर ज़रूर है लेकिन ये पोर्शन इस साल से आपको नहीं पढ़ने हैं। रूट, स्टेम एंड लीव्स की मार्फोलॉजी नहीं पढ़नी, इसलिए यहाँ पे हम आपको कन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देनी जरूरी है। द पोटैटो is a stem because it is the stem tuber and having ability to store the food. Listen, this is ability to store the food and from that the roots are arised. So roots never arise from roots, roots always arise from the potato, roots always arise from the stem। So roots हमेशा stem से ही arise होते हैं। stem चाहे इस तरह से हो, stem चाहे ऐसे हो, अगर roots यहाँ से निकल रहा है तो वो जिससे निकलेगा वो stem ही होगा, ठीक है। So potato, from potato the roots arise and that is distribute throughout the different parts of soil, that's why potato is a stem not a roots। hanging brown fibers parts of banyan tree, banyan tree को आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको मिला होगा कि आप देखे होंगे banyan tree से बहुत सारे ऐसे ब्राउन कलर के फाइबर्स लटकते हुए मिलेंगे, वो रूट्स है। और उस रूट्स को क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है, नॉट स्टिल्ट रूट, दैट इज द प्रॉप रूट। क्या हम लोग बोलते हैं, प्रॉप रूट, ठीक है। तो ये रूट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। गिव अदर एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ और एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का ले सकते हैं, जैसे इन केस अगर एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अंडरग्राउंड स्टेम के भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जैसे आप बल्ब के फॉर्म में ओनियन को ले सकते हैं, हालांकि ओनियन रूट्स है, ठीक है। शुगर केन के भी पार्ट्स जो है, डायलिया के भी रूट्स अंडरग्राउंड होते हैं लेकिन वो रूट्स नहीं होते, स्टेम ही होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एरियल रूट्स में आप स्टिल्ट रूट्स मेज का ले सकते हैं, स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। मेज में भी आप देखे होंगे इस तरह से ऐसे निकला हुआ रूट्स रहता है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो ये कुछ रूट्स के एग्जाम्पल, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, 20 आप मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी पे।
What is cell cycle? Draw the diagrammatic representation of cell cycle. Name the phases in which DNA of DNA synthesis. सेल साइकिल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है. तो सेल साइकिल एक्सप्लेन एज, देखो इसका बहुत डिटेल में वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, हालांकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा. अगर आप कमेंट करते हैं सर सेल साइकिल का वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो ऑफ कोर्स मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है. सो सेल साइकिल को कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंट फेजेज ऑफ सेल्स इन विच single paternal cell, single parental cell, not paternal, single parental cells give rise to or more than two daughter cells, and later that cells further able to form the new cells. So the formation of different cells in a cyclic manner from parental to daughter cells are known as cell cycle. ठीक है. ड्रॉ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल साइकिल. तो सेल साइकिल को आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बता दे रहा हूँ कि सेल साइकिल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है. जनरली सिंगल सेल्स में कुछ एक्टिविटी नहीं होती है, तो वो G0 फेज है. ठीक है. इसके बाद इसमें थोड़ा सा ग्रोथ होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं G1 फेज. यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ होता है, सेल साइज में बढ़ता है. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, इसके जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं S फेज. जेनेटिक मटेरियल इंक्रीज हो गया S फेज में. फिर ये इसमें इसके जो सेलुलर बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स है, वो सब बढ़ जाएंगे. इसको हम लोग बोलते हैं G2 फेज. इसके बाद इसका प्रोफेज होता है. ठीक है. फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है. उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होकर के सेल. देखो अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सेल साइकिल अगर एग्जाम में आता तो कैसे बनाते हैं. ठीक है. चलो देखो बेटा, सेल साइकिल के रिस्पेक्ट में हमको यही डायग्राम बनाना होता है. ठीक है. ये यहाँ पे कुछ फेजेज ऐसे होते हैं जो सेल इनएक्टिव स्टेज में रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज. इसके बाद G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर उसके बाद M फेज. इसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आता है. फिर से 2 सेल बनते हैं, एक सेल फिर से इंटर कर देता है सेल साइकिल में. ठीक है. तो ये सेल साइकिल है, इसी को हमको बताना था. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं. सेल साइकिल वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हमारा. ठीक है. अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसी में ड्रॉ द सेल साइकिल वाला हो गया है. अब इसी में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, जिसको हमको जानना है. क्वेश्चन ये पूछा है, नेम द फेज ऑफ DNA सिंथेसिस. तो क्या हो जाएगा, S फेज. ये नोट कर लेना. ठीक है. सिंथेटिक फेज, इसको S फेज भी बोलते हैं. ठीक है. S फेज और सिंथेटिक फेज बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोजोम दैट आर अरेंज इन इक्वेटोरियल प्लेट. तो क्या हो जाएगा आंसर, मेटाफेज. ठीक है. इसके बाद क्या है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग माइटोसिस. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोफेज. रीअपियरेंस ऑफ क्रोमोजोम्स इन माइटोसिस, एनाफेज. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स, ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम, ये हो जाएगा जाइगोटीन. और एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, ये क्या हो जाएगा, लाइज. ठीक है. तो हमने इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने अटेम्प्ट कर लिया है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन नंबर 22 और 23 आप सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन पेपर से आप क्वेश्चन नंबर 22 और 21 आप देख लीजिए. ठीक है. अच्छे से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए और 23 देख लीजिए. इसमें आपको भरना क्या है, इसमें आपको देखो ए भरना है. ए क्या है, ठीक है. तो ए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आप अच्छे से देखेंगे समझ में आ जाएगा. सिट्रिक एसिड के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, सक्सिनिल कोएंजाइम ए. ठीक है. ये सक्सिनिक एसिड यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. ये सक्सिनिक एसिड आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्यूमरिक एसिड आ जाएगा. यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आ जाएगा. और यहाँ पे NADH पॉजिटिव आयन आ जाएगा. ठीक है. तो ये सब सारी चीज़ें आपको भर लेने हैं. हाउ मैनी ATP आर फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FAD. तो ये क्या हो जाएगा, 2 ATP. बाकी ये सब C3 C4 को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे. थैंक यू.